Hello everyone, today I am going to explain you three important topics of the chapter development. Four topics we had already covered in the previous lecture. Now in today's lecture I am going to explain you these important three topics, and that are income and other criteria, public facilities, sustainability of development. Students, in the previous lecture as we have done that how World Bank use per capita income or average income as a criteria to classify different countries, like the countries where the per capita income is 12,616 US dollar per annum, called the rich countries. On the other hand, the countries with per capita income of 1,035 US dollar per annum are under low income countries, and those countries with per capita income of, like our country with per capita income of 1,530, come under low middle income countries. Now, income is not only the criteria to classify different countries or to compare different countries. Income is not only the criteria, some other criteria are also required to differentiate different countries. Like income is the criteria we had done, World Bank has adopted it as a criteria for differentiate different countries of the world. Now other criterias के लिए we have to find out some of the terms, or we must know some of the terms. Like first is infant mortality rate, or IMR, infant mortality rate. Infant mortality rate indicates a number of children die before the age of, or infant die before the age of 1 year in proportion to the number of 1,000 live birth in that particular of an infant in that particular area is called infant mortality rate. On the other hand, second is literacy rate. अब what is literacy? These are some criteria. अब ये भी कुछ criteria हैं. किस चीज़ के criteria हैं? For comparing different countries and states. अब literacy rate is also one of the most important criteria. What is literacy rate? Literacy rate measures in proportion of number of children, or proportion of number of literate person at the age of 7 or above age group is called literacy rate. After then third आता है हमारा, that is infant mortality rate. We have done infant mortality rate. क्या होता है कि हमारी कंट्री में कुछ बच्चे जो है वो 1 साल से ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाते हैं, तो उनका जो प्रोपोर्शन है उस पर्टिकुलर उन प्रोपोर्शन बच्चों पर जो तभी पैदा हुए हैं उस एरिया में, उन पर जितनी डेथ हो रही है वो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. ऑन द अदर हैंड लिटरेसी रेट क्या होता है? ये मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप. इसके बाद हमारा इसके अंदर आता है दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. अब व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? It indicates that number of children attending school at the age of 6 to 10 in percentage of that particular time period or that particular age group children in a particular area. इसका मतलब होता है कि एक नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है कि 6 से 10 साल तक के बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं किस परसेंटेज में, कि उतने जितने बच्चे उस पर्टिकुलर एरिया में उस एज में पाए जाते हैं, तो वो वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो होगा.
ओके, सो दीज आर सम अदर क्राइटेरिया, जैसे हमने लिखा ना, इनकम इज वन क्राइटेरिया, इनकम कौन सा था, एवरेज इनकम इज वन क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज, and some other criterias are also there for comparing countries or states in a country. अब उसके लिए ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें और देखी जाती हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट्स, 2-3 स्टेट्स के बीच में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की डेवलपमेंट को लेकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, केरला का एग्जांपल दिया हुआ है और पंजाब का एग्जांपल दिया हुआ है कि पंजाब में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 और केरला में कितना है, 12 था। अभी 2012 का वहाँ पर स्टैटिस्टिक दिया हुआ है, तो अगर हम उसे देखें तो 30 एंड 12। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है अगर पंजाब में, दैट मीन्स कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू केरला। ऑन द अदर हैंड अगर पंजाब की पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो वो ज़्यादा दी हुई है एज कम्पेयर टू केरला। अब उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो में भी कौन बेटर है, केरला बेटर है। लिटरेसी रेट में भी कौन बेटर है, केरला बेटर है। ऑन द अदर हैंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कौन बेटर है, केरला बेटर है। ऑन द अदर हैंड पंजाब जो है वो सिर्फ किस में बेटर है, सिर्फ किस में है, पर कैपिटा इनकम में बेटर है। अब इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ इनकम एक क्राइटेरिया नहीं है किसी कंट्री या किसी स्टेट को कंपेयर करने के लिए, सम अदर क्राइटेरियाज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की या कंट्री की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए हम सिर्फ उसकी इनकम नहीं देखेंगे, हम उसमें क्या भी देखेंगे, हेल्थ स्टेटस कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, और उसके लिए हम इन क्राइटेरियाज को डिसाइड कर रखे हैं, दैट आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, literacy rate and net attendance ratio. So these criteria are also very much important. So here we covered income and other criteria. Hope all you understand till here कि किस तरह से किसी कंट्री की या स्टेट की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए हम वहाँ की नेट अटेंडेंस रेशियो को भी देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी देखते हैं, लिटरेसी रेट को भी देखते हैं और पर कैपिटा इनकम को भी हम वहाँ पर एनालाइज करते हैं। नाउ वी मूव टू पब्लिक फैसिलिटीज़। अब व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़? पब्लिक फैसिलिटीज़ एज इट्स नेम सजेस्ट आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी एक्टिविटी फैसिलिटीज़ हैं? Public facilities are those facilities which are provided by the government, and these facilities are, for example, रेलवेज हम देख सकते हैं इसके अंदर, अदरवाइज हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से कम्युनिटी हॉल की सुविधाएं दी जाती हैं, पार्क्स की सुविधाएं दी जाती हैं, या हॉस्पिटल्स की सुविधाएं दी जाती हैं, या स्कूल्स की सुविधाएं दी जाती हैं। वो सब कैसी हैं? पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, कि वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देता है किस लिए देता है? ताकि सेटिस्फाई कर सके सभी की कलेक्टिव नीड्स को लोगों की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हॉस्पिटल्स की हैं, या इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स की हैं, या रेलवेज़ की हैं, या कम्युनिटी हॉल्स की हैं, या पार्क की हैं, वो सब क्या हैं? पब्लिक एक्टिविटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, दैट इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो क्या है? मनी इन योर पॉकेट, मनी इन योर पॉकेट money in your pocket is not only required to live well, कि मनी अगर आपके पास है तो सिर्फ अच्छे से जीने के लिए मनी ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
मनी ही आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकती है। जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल सकता, इसके अलावा हमें क्या नहीं मिल सकता, इन्फेक्शियस डिजीजेस से हम नहीं बच सकते मनी से, क्योंकि उससे हम किस तरह बच सकते हैं, जब कलेक्टिवली हम सारी सोसाइटी जो है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के प्रति और उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेंगे। तो इस तरह से मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट यू मे नीड टू लिव वेल, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मनी इन योर पॉकेट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू लिव वेल, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट यू मे रिक्वायर टू लिव वेल। तो सब कुछ मनी जो है खरीद कर नहीं दे सकती है। तो हियर वी कंप्लीटेड पब्लिक फैसिलिटीज़, की पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं वो हमने कर लिया, कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कलेक्टिव नीड्स को पूरा करती है लोगों की, और मनी ही हमारे पास अगर है तो वो हमें अच्छे से जीने के लिए सिर्फ वो ही ज़रूरत नहीं है, सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसके अलावा आता है हमारा दैट इज कि यूएनडीपी दिया हुआ है हमारी बुक में, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दैट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी क्राइटेरिया डिसाइड किया है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को। वर्ल्ड बैंक का हमने किया क्राइटेरिया एवरेज इनकम है, जबकि यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है, जिसमें हमारा आ जाता है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। अब इसमें क्या चीज़ डिसाइड की हुई है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। और क्या यूज़ करता है, इसके अलावा जो हमारा पर कैपिटा इनकम है उसको भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्या यूज़ किया जाता है, लिटरेसी रेट को भी यूज़ किया जाता है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। और यूएनडीपी जो है इसने क्या चीज़ दी है, एचडीआई। एचडीआई क्या है, ह्यूमन, एक इंडेक्स दिया है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये जो यूएनडीपी है ये रैंक करता है कंट्री को। अब हमारी कंट्री की क्या रैंक है, हमारी कंट्री की अकॉर्डिंग टू 2018 में जो एचडीआई रैंक है वो कितनी है, 130 रैंक है इन एचडीआई। दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी 2018 में, दैट इज 130 रैंक थी। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यूएनडीपी ने भी क्या यूज़ किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए उसने अपने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, सिर्फ पर कैपिटा इनकम को किया है। तो इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकम इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया to find out the difference between the different countries. Some other criterias are also required to finding out the development of a country. तो इसीलिए हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत नहीं है, पर कैपिटा इनकम की नहीं है, बल्कि किसी कंट्री के एजुकेशनल लेवल को, उसके हेल्थ स्टेटस को भी आंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के बीच में डिफरेंस भी आता है कि उनके क्राइटेरियाज में क्या डिफरेंस है। तो दैट यू कैन राइट इजीली कि वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम और इन्होंने क्या चीज़ें भी ली हुई हैं, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस को भी लिया हुआ है, वो रैंक नहीं करता कंट्री को, और ये क्या करती है, रैंक करती है। तो इस तरह से यूएनडीपी ने, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने एक तो वो इंडेक्स दिया है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है, इसके अलावा डिफरेंट क्राइटेरियाज को अडॉप्ट किया। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है, दैट मीन्स इट डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि उसके बर्थ के टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर लिया जाए कि वो कितने सालों तक जिएगा। ये एक्सपेक्टेंसी रेशियो डिसाइड किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में।
तो इस तरह से हमने कुछ पहले इंडिकेटर्स किए, जैसे कि अब लिटरेसी रेट हमने किया, पर कैपिटा इनकम हमने किया, नेट अटेंडेंस रेशियो हमने किया। बिफोर दैट हमने उसमें ये किया था कि किस तरह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है ये भी HDI का क्राइटेरिया बन गया है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं HDI के, वो कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, इसके अलावा हमारा आता है दैट इज लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और हमने किया था नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, किसके इंडिकेटर्स हैं? HDI के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ इंडिकेटर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग फिर क्या दी जाती है? रैंक दी जाती है। कौन देता है? UNDP देता है। UNDP क्या देता है? अपनी रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट को हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR देता है। UNDP क्या देता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा एक और जो टर्म है जो आपकी बुक में यूज की गई है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। अब व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स BMI। अब दिस टर्म, इसमें क्या दिया गया है कि टू फाइंड आउट द undernourished adult if they're in a country, तो that nutritional scientist called BMI की ये फाइंड आउट करने के लिए कि कंट्री में कुछ एडल्ट अंडर नॉरिश तो नहीं है, तो उसके लिए जो टर्म यूज की गई है हमारे न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट के द्वारा, दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब इस बॉडी मास इंडेक्स को निकाला किस तरह से जाता है? हाउ कि टेक अ वेट ऑफ अ पर्सन इन kg। वेट ऑफ अ पर्सन किस में लिया जाता है? kg में लिया जाता है, इन kg। एंड हाइट ली जाती है पर्सन की इन मीटर्स, और वो भी किस में? स्क्वायर में। तो ये हमारा क्या निकलता है? इससे क्या आ जाता है? अब जो भी फिगर आएगा, अगर वो फिगर 18.5 से अबव है, अगर उससे कम है, दैट मीन्स क्या है? अंडर नॉरिश्ड है, और अगर 25 से अबव है, दैट मीन्स ओवरवेट है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो है एडल्ट, दैट मीन्स कि वो कैसा है? नॉरिश्ड है हमारी कंट्री में, और इसमें बढ़ते हुए बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये हम क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। ये कौन यूटिलाइज करता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब दी जाती है तो उसमें BMI को भी देखा जाता है। तो BMI कैसे निकलता है? वेट अपॉन हाइट इन स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कहलाता है? BMI। 18.5 से ज़्यादा से कम अगर फिगर आ रहा है, दैट मीन्स अंडर नॉरिश्ड है, और अगर 25 से अबव आ रहा है, दैट मीन्स ओवरवेट है। सो दीज टू टर्म्स यू हैव टू डू इन इट, UNDP and BMI, that is body mass index. Now we move to sustainability of development. What is sustainability of development? It is the process to utilize the resources for present generation and without harming those resources, so that future generation will utilize it to use और टू फुलफिल देयर नीड्स। कि हम रिसोर्सेज का इस तरह यूटिलाइजेशन करें कि हम आज के टाइम पे भी उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, और इस तरीके से ही हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको यूटिलाइज करे। तो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बात आती है, हमने जब रिसोर्सेज वाले चैप्टर में किया तो हमने देखा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है टू यूटिलाइज द रिसोर्स इन सच अ वे दैट इट फुलफिल्स आवर नीड एंड ऑल्सो सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो अब डेवलपमेंट भी तो उसी पर निर्भर है कि हमारी जो डेवलपमेंट है आज की, वो जिस तरह से है एटलीस्ट उतनी चलती रहे, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अब 2 एग्जांपल्स जैसे आपकी बुक में दिए हुए हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा, वो धीरे धीरे 1/3 जो है ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होता जा रहा है, और इसी स्पीडली अगर होता रहा
तो वो एक दिन अंडरग्राउंड वाटर जो है ख़त्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरा आ जाता है एक और हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, और वो क्या है कि जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को अगर हम इसी पेस में यूज़ करते रहे तो नियर अबाउट 44 ईयर्स के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट इसमें आ जाता है, दैट मीन्स कि आज जितनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको हम सस्टेन करके रखें। ऐसा ना हो कि अभी जितनी डेवलपमेंट है हम उससे भी ज़्यादा कम उस डेवलपमेंट को कर दें। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है सस्टेन करने की? किसको सस्टेन करने की? डेवलपमेंट को सस्टेन करने की, कि कम से कम आज हम जितने डेवलप हैं उतने हम फ्यूचर में भी रहें। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम सही तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर फिनिश। दिस इज डेवलपमेंट चैप्टर इन विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हमने किया। इसके अलावा दीज 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। हमने कर लिया डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट हमने अभी किया था कि किस तरह से करते हैं, पर कैपिटा इनकम से करते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हमने किया कि सिर्फ इनकम ही, पर कैपिटा इनकम ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड some other criterias are also very much important. Public facilities are those facilities which are provided by the government and provided by the government to satisfy the collective needs of the people हमने किया। और हमने किया कि money in your pocket cannot buy everything that you may need to live well, कि आपको सही तरीके से जीने के लिए मनी की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होती हैं। इसके अलावा हमने किया था कि UNDP क्या है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी HDI इंडेक्स दिया है, और उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लिटरेसी रेशियो एंड पर कैपिटा इनकम। सो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एजुकेशन लेवल और साथ में हेल्थ स्टेटस को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। और लास्ट में हमने किया था BMI, बॉडी मास इंडेक्स, की बॉडी मास इंडेक्स में हम पता लगाते हैं कि जो एडल्ट है वो अंडर नॉरिश तो नहीं है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके लिए हमें BMI निकालना पड़ता है उसका, और 18.5 से अगर कम है दैट मीन्स अंडर नॉरिश्ड है, 25 से अबव है दैट मीन्स ओवरवेट है। इसके बाद हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट किया था, जिसमें हमने किया द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज to fulfill our present need and also secure them in such a way that it will fulfill the need of the future generation also, कि उनकी नीड को भी वो फुलफिल करेगा। सो वी मस्ट यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे एंड प्रिजर्व दैम फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो एंड नॉट ओवर यूज दैम, डिग्रेड दैम, सो दैट कि वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमें किस तरह से यूज़ करना है, सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है रिसोर्सेज का, ताकि हमारी डेवलपमेंट भी सस्टेन रह सके, जैसी आज है वो बाद में भी रह सके। तो हियर योर चैप्टर फिनिश।